Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series of Python programming. In this video, we are going to discuss about how to use the Python libraries. For this, we must know what are Python libraries. Python libraries are the collection of methods or classes which can be used easily. There are certain libraries, or you can say built-in libraries, already defined in the Python. Later on you will see that we can create our own Python libraries also. Python program is made of three different components: library, module and functions. Now let's understand the relationship between module, package and library. A module is nothing but a py फाइल. जो भी आप लोग पाइथन में फाइल्स बनाते हो जिसकी एक्सटेंशन .py होती है, वो सारे मेरे क्या होते हैं? मॉड्यूल्स. दैट मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल and it is a collection of function definitions, variables, classes and statements. And next, what is Python package? A package is a directory of a Python modules. That means if I have created any module, अगर मैंने Python में कोई अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट किया है और मैं उस मॉड्यूल को एक फोल्डर में सेव कर देती हूँ, तो that folder is called a Python package. Next is library. A library is a collection of many packages in a Python. ठीक है, I am repeating the difference relationship again because some students might find it little bit confusing. There is no need to confuse in that. First module is nothing but a py file. .py जिसकी extension होगी तो that will be your Python module. उस Python module में आपके इन जो भी फंक्शंस हो डिफाइन होंगे, क्लासेस होंगी, वेरिएबल्स होंगे, स्टेटमेंट्स होगी, उन सब का कलेक्शन क्या होता है? मॉड्यूल. सपोज आई हैव क्रिएटेड 4 और 5 पाइथन मॉड्यूल्स. 4 और 5 मैंने पाइथन की फाइल्स बना ली. अब उनमें से मैं 2 फाइल्स को एक फोल्डर में स्टोर कर रही हूँ और रिमेनिंग 2 फाइल्स को मैं दूसरे फोल्डर में स्टोर कर रही हूँ. तो दैट फोल्डर, जो फोल्डर मैंने बनाया है, वो आपका क्या होगा? पैकेज. और वापस से उन दोनों फोल्डर्स को मैं एक फोल्डर और में रख देती हूँ, तो दैट विल बी योर पाइथन लाइब्रेरी. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर. सपोज दिस पाइथन फाइल you have created 4, 1, 2, 3 and 4. These 4 .py files you have created. Okay, so these are your modules. These are your modules. Now what you have done, you have created one folder and in that folder you have placed these 2 Python files. Okay, so now this folder, this will be your package. ये जो आपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हैं वो आपके क्या होंगे? पैकेज. और उन्हीं पैकेज का कलेक्शन मैंने एक फोल्डर और बनाया, तो दैट विल बी योर पाइथन लाइब्रेरी. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि जो हमारी पाइथन लाइब्रेरी होगी वो आपका क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पैकेजेस. पैकेजेस आर नथिंग बट अ फोल्डर इन विच पाइथन मॉड्यूल्स आर सेव्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Importing Python modules. Now there are certain Python modules which are inbuilt. ठीक है, in our next video also I try to explain you कि how to create our own Python modules. Now importing Python modules. There are so many inbuilt Python modules. In order to use that inbuilt functions in your program, you have to import the Python module in that. There are 2 methods to import the module in your file. First one is using import statement and second is using from statement. अगर आप import statement लिखोगे तो उससे क्या होगा? Syntax what will be? Import and then name of module. Suppose I want to import the math module. So what will I write? Import and then math. And remember my dear students, one more thing, we can import more than one modules also at the same time. Suppose you want to import math
and random module. So what will you write? Import and then module 1 comma module 2. यहाँ पर आपने जितने भी modules import करने हो, you can write it here. And the syntax to access the function using import statement is, first you have to write the name of a module and then you have to write the name of a function. Let's execute this practically. I am opening my Python ideally. Now suppose I want to calculate the factorial of a number. अब मुझे पता है कि मेरा factorial function inbuilt है और कौन से मॉड्यूल में है वो, import math. तो I am importing my math module here. अब import math लिखते ही क्या होगा, जो भी math module की मेरे जितने भी inbuilt functions हैं, inbuilt variables हैं, वो आपके इसमें एक्सेस हो जाएंगे. अब आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर मुझे चेक करना हो कि मेरे मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो उसके लिए आपका बेटा फंक्शन होता है dir. dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी. इससे आपका क्या होगा, सपोज मैंने dir ने फंक्शन कॉल किया और उसमें मैंने पास कर दिया नेम ऑफ मॉड्यूल. तो व्हेन आई विल प्रेस द एंटर की, it will show the name of all the inbuilt functions. See, plus variables also. Pi एक वेरिएबल है और एक e एक वेरिएबल है. ठीक है. बाकी सारे इसमें आपके क्या हैं, इनबिल्ट फंक्शंस. अगर आपको किसी फंक्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो व्हाट विल आई राइट, हेल्प फंक्शन भी पाइथन ने मुझे उसके लिए प्रोवाइड कर रखा है. यू जस्ट हैव टू राइट हेल्प मैथ. तो व्हाट विल इट डू, ये आपको इसने आपको लिस्ट दे दी जितने भी मेरे पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उन सब की लिस्ट दे दी. ठीक है. हम ये खुद से भी करेंगे. इन माय नेक्स्ट वीडियो आल्सो आई विल शो यू कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स. फिर हम उसको भी इस तरीके से हेल्प मॉड्यूल से उसकी भी एक्सप्लेनेशन को एक्सेस कर पाएंगे. अब नाउ सपोज मुझे इसमें चेक करना है, लेट्स यूज दिस cos function. अब ये इनबिल्ट है cos x. What this function will do? Returns the cosine of x. जो भी आप इसकी कोसाइन वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करेगा. ये देखो आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया स्टार्टिंग में, हेल्प ऑन बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ. नेम क्या है फाइल का, मैथ मॉड्यूल है. तो दैट मीन्स मेरे पास math.py नेम से ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है. अब डिस्क्रिप्शन देखो, दिस मॉड्यूल इज ऑलवेज अवेलेबल. It provides access to mathematical functions defined by C standard. जो आपकी एक C लैंग्वेज है, उसमें ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं. पाइथन ने इसको एज इट इज अपने इंटरप्रेटर में इनकॉर्पोरेट कर रखा है. ओके. एंड यू कैन सी ये आपके सारे के सारे अल्फाबेटिकल वाइज सीक्वेंस में अरेंज है. अब सपोज मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल x. दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट है ये. मुझे अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा और इट विल फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ x. ठीक है. लेट्स डू द फैक्टोरियल, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अब इंपोर्ट मैथ हमने कर रखा है. अगर नहीं कर रखा होगा तो व्हाट यू विल राइट, इंपोर्ट मैथ. और सिंटेक्स बेटा अभी बताया है. कोई भी अगर आपने इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसके बाद अगर आपने फंक्शन को एक्सेस कॉल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ अ मॉड्यूल, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ फंक्शन. अब नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 6, सो इट विल रिटर्न मी द फैक्टोरियल ऑफ 6. ठीक है. नाउ सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो व्हाट विल यू राइट, हेल्प एंड नेम ऑफ फंक्शन. ठीक है. हेल्प फंक्शन में आप अगर मॉड्यूल का नेम लिखोगे तो वो आपको उस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे रिटर्न करके देगा. हेल्प, सपोज आई एम राइटिंग रैंडम, तो ये रैंडम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट द रैंडम मॉड्यूल आल्सो. इंपोर्ट रैंडम. नाउ रैंडम मॉड्यूल इज गेट इंपोर्टेड इन माय प्रोग्राम. तो आई एम राइटिंग हेल्प एंड देन रैंडम. ठीक है. इट विल शो मी द लिस्ट ऑफ ऑल द इनबिल्ट फंक्शंस. rand range, rand int, this I have explained you earlier also in my previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं किया, वॉच किया है, go and watch that video also. I will provide you the link of that video in my description also.
Otherwise, you can search in my playlist also. Now, suppose I want to see what is the function. Rend-int function will do. You have to write help. Okay, let's now suppose you have imported the module random. If you will write help random, it will show you all the functions which are in random module. सारे functions की वो आपको क्या provide करेगा? List. But अगर मुझे कोई एक particular function को find out करना है, तो what I will write? Random dot rend-int. Suppose I want to check, so it will show you the help of that rend-int function. कि help on method rend-int, method of random, it will include boundary values also. Okay. Now move on to the next concept. This I explained you. Next is using from statement. Using from statement also you can import your Python module. And what will be the syntax for that? From name of module and then import function name. Okay, now let's execute this. Suppose I am restarting my shell now. Okay, so now I am not writing from math. I am writing from math import and the name of function. Suppose it's factorial. अब इससे क्या होगा? सिर्फ factorial function ही मैं एक्सेस कर सकती हूँ मैथ मॉड्यूल का, और कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकती. और फंक्शन कॉल करते टाइम एक थोड़ा सा चेंज रहेगा. जब आप फंक्शन कॉल करोगे यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, आप यहाँ पर मॉड्यूल का नेम नहीं लिखोगे, बट यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ अ फंक्शन. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज दिस. अब अगर आप इसका सपोज कोई और फंक्शन एक्सेस करते हो तो आपको ये एरर शो करेगा. अब इसमें पाई वेरिएबल है इनबिल्ट, तो इट विल शो एरर बिकॉज हमने सिर्फ क्या इंपोर्ट किया है? फैक्टोरियल. अगर आपको वो भी इंपोर्ट करना है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल कोमा पाई कोमा ई, लेट्स सपोज. अब ये इंपोर्ट हो गए. अब आप डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकते हैं. सी, ठीक है. बट अगर मैं कोई और फंक्शन को एक्सेस करूंगी तब वो मुझे एरर शो करेगा. बट अगर मैं इंपोर्ट मैथ लिख रही हूँ तो मेरा सब कुछ इसमें इंपोर्ट हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स, ऑल फंक्शंस, सब कुछ. तो उसको एक्सेस करने का सिंटेक्स क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ मॉड्यूल एंड देन सपोज पाई की वैल्यू आपने चेक करनी है, और मैथ डॉट ई, मैथ डॉट फैक्टोरियल. ओके, so I hope this concept is clear to you now कि how do we access and use the Python libraries or Python modules. Okay, in our next video this more concept we can cover. Module aliasing. Aliasing means कि we have to give another name to a existing module. अब now suppose मैं math use कर रही हूँ बार बार. अगर मैंने लिखा import math as m, तो अब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ? m डॉट फैक्टोरियल. मीन्स हमने एक अल्टरनेट नेम दे दिया है उस मैथ वेरिएबल, मैथ मॉड्यूल को. सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल अलाइसिंग. अलाइसिंग मीन्स किसी चीज को अल्टरनेट नेम देना. अब मेरा मैथ मॉड्यूल है. अब जहां जहां मैं मैथ लिख रही थी मुझे मैथ नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगी? m डॉट पाई. अब वो आपका क्या है? मैं m मेंबर अलाइसिंग. This was very again yet simple concept. In our next video, I will show you how to create our own modules. What you have done covered till now, आपने सिर्फ क्या किया? जो inbuilt modules हैं उनके functions को आपने access किया और use किया. Next video में हम देखेंगे कि अगर हमें खुद के modules, खुद के functions बनाने हो, वो कैसे बनाते हैं और उनको कैसे access किया जाता है. Till then, keep connected. Keep studying. Okay, thank you and have a nice day. If you like my video and understood the concept, do like my video, comment on that video and subscribe and share my channel. Thank you.